बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत और मीडिया को पाकिस्तानी हमले का शायद बहुत शौक है। बेफिक्र रहो, हम तुम्हारा जवाबी हमले का शौक पूरा करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान का जवाबी हमला दुनिया को नजर आएगा और गूंज भी सुनाई देगी। भारत से आने वाली हर चीज के परखचे उड़ा देंगे। शोहदा की तस्वीरें रियासत पाकिस्तान के जहन पर नक्श हैं। Is to put some sense, and if that sense can't be put, then sense have to be put in some other way, because this cannot go on. This cannot be allowed, that you think that you have a false sense of self entitlement. God knows from where it comes. So this has to be told in the language that they can understand. Hopefully that language is the easier one. It's their choice. I told you before, whatever they may do, we are prepared for any eventuality. They want to continue it, but what they have started, I'll tell you, we'll finish it. We have all the rights to do whatever to protect the honor, integrity and sovereignty of people of Pakistan. Whatever we have been doing so far is just protecting ourselves, and we have been doing it with lot of grace and alhamdulillah with lot of success. पाक फिजाइया ने नया आर्ट ऑफ वॉर तख्लीक कर दिया है। फिजा में जंग के उसूल बदल डाले हैं। 7 और 8 मई की फिजाई जंग सबक के तौर पर पढ़ाई जाएगी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, भारत को राफेल का गरूर था, इसलिए उन्हीं तैयार को निशाने पर रखा। भारतीय पायलट ने फिजा में धमाका सुनने की तस्दीक की। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने तमाम तबाह भारतीय तैयारों के इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश कर दिए। 42 high-tech aircraft on our side, and the strategy was to have force concentration in our selected AOR and fight at our own strength. PF fighters ensured Pakistan's air sovereignty, and because of that we first rerouted all civilian traffic that was about to go from Lahore, Islamabad and this area, because we thought that this is going to be the hot plate, so we wanted safety for all the civil airliners. When they had seen this kind of a strong defense on our side, they resorted to launching their air-to-ground weapons while being cis frontier. And as soon as they had launched the weapons, we could ID that instantly. And the Chief of the Air Staff, as I mentioned, he was in the COC. He has been there for a couple of nights. I have seen him there. So when I said that he spearheaded and he led from the front, he really did that. And he changed the contract. We were given the rules of engagement first to deter, and as soon as this thing happened, we changed our rules of the game in the air from deter to assure kill, deny own loss. PF strategy changed. We had a plan. We thought that Indians, the last time they said that they would have Rafales and they could have created any difference. So we targeted their center of gravity and the Rafales. That's why you see good numbers for that. We would have had more numbers, but we showed restraint. Ladies and gentlemen, the thing about this whole play time was this thing lasted for more than an hour. With so many large number of aircraft, so many large number of aircraft on both sides, with so many grinds, and the flow of the BVR, the modern warfare has changed so much that the long stick, the employment is if you don't shoot, you get shot. So that is why the art was to employ them optimally, and that was a big challenge for us. That is why I say that it has never happened before. These are the locations with the range bearing, electronic ID, that we think that we are sure that we have shot. A MiG-29 was shot 8 miles from LOC, bearing 24320 nautical miles from Srinagar. A Su-30 was shot 192, 19 miles, 25 miles from LOC. We have the exact details, because you cannot, in the modern battlefield, you cannot conjure up things out of imagination. You have an electronic ID. The aircraft gets picked up by his data link. As soon as you put on your radar, you show yourself, and nobody can hide, nobody can deny that. A Rafale was shot 54 miles from LOC in Srinagar. So you can have all these details. We have exact range bearings because
And when you employ your weapon, you know exactly when the missile is getting active, when it is getting, and the blip is disappearing, which is verified as you get down for the debrief. So none of the claims have any fat in them. So they are pretty clear, pretty concise, pretty accurate. And I have an audio from a Rafale formation that I will share. The call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. Please play. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his member, flight member is not there. पाक भारत जंग के बायस निजी अस्पताल भी हाई अलर्ट। अस्पतालों को 35% बेड्स हंगामी सूरत हाल के लिए मुख्तस करने की हदायत। ऑपरेशन थिएटर्स और तिबी आलात मशीनरी को फ़ाल रखा जाए। हंगामी सूरत हाल से निमटने का प्लान मुरतब करें, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का मुरासला। पाक भारत कशीदगी के बायस प्राइवेट अस्पतालों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। प्राइवेट अस्पताल 35% बेड्स हंगामी सूरत हाल के लिए मुख्तस करेंगे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने प्राइवेट अस्पतालों को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पताल हंगामी सूरत हाल से निमटने का प्लान मुरतब करें। प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर्स और तिब्बी आलात और दीगर मशीनरी को फाल रखा जाए। प्राइवेट अस्पताल इमरजेंसी मेडिसिन और डिस्पोजेबल्स का वाफिर स्टॉक रखें। मरासले में प्राइवेट अस्पतालों में जनरेटर दुरुस्त हालत में रखने की हिदायत की गई। मरासले में कहा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों में पानी और दीगर जरूरियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मौजूद होना चाहिए। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने तैयारियां तेज कर दी। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन की तरबियत का अहतमाम किया गया। ट्रेनिंग किसने दी और क्या सिखाया गया, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में कैसे। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 112 के अफसरान ने सिविल सेक्रेटरीट मुलाजमीन के लिए खसूसी तरबियत का एहतमाम किया। सिविल डिफेंस के अमले ने सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को खसूसी ट्रेनिंग दी। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 ने सिविल सेक्रेटरीट में अपने अपने तरबियती कैंप लगाए, जबकि नागहानी सूरत हाल में अपने हवास पर काबू रखने की तरबियत दी गई। हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन और जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने की भी तरबियत दी गई। शुरका का कहना था कि वतन के दफा के लिए वो अगले मोर्चों तक भी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। माल रोड के ताजों का जज्बा दीदनी। पाक फौज से जायद जहती के लिए पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय जंगी जारियत ने पाकिस्तान कौम को ललकारा तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा ईमानी आसमान पर पहुंच गया। माल रोड के ताजिरों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे लगाए। ताजिरों का कहना था कि जज्बा ईमानी से सरशार पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल राफेल तैयारे को कबाड़ में बदल कर रख दिया। पाक फौज ताजर कहीं भी हो, लाहौर में हो, पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, वो आपके साथ है। हमारी माली जानी हर लिहाज से हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मोदी के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि हम मुसलमान हैं, किसी भी तरीके हम किसी के साथ हमसाये के साथ पहल नहीं करते। हमारा मजहब है वो हमें इजाज़त नहीं देता, लेकिन अगर हमसाये की तबीयत खराब हो तो उसकी तबीयत ठीक करना जानते हम पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, शाना बशाना साथ खड़े हुए हैं। पाकिस्तान फौज हमें जिस टाइम भी इशारा करेगी हम बॉर्डर पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम हर वक्त जाने शहादत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सब हम मिल के हैं। पूरी कौम जो है पाकिस्तान के आर्मी के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक का आर्मी जिंदाबाद। ये पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से दहशत गर्दी कर रहे हैं, इनको भरपूर जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये जुर्रत न करें इस तरफ। ताजिर जानो माल और अपनी औलाद तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन अंजुम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
लीगी MP राना राशिद मिन्हास की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली, वज़ीर आज़म के मुशीर शब्बीर अहमद उस्मानी की रैली में ख़ुसूसी शिरकत। लीगी रहनुमाओं, कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शरीक होकर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। लीगी MPA राना राशिद मिन्हास की क़यादत में कहना पुलिस स्टेशन से पुराना कहना तक पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाकर अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ पाक फौज, हम तुम्हारे साथ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर शब्बीर अहमद उस्मानी का रैली के शुरका से खिताब में कहना था कि वज़ीर आज़म और कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय जरहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सिपा सलार को इख्तियार सौंप दिया है। बुज़दिल वो होता है जो रात को हमला करता है। उसने बुज़दिलाना हमला किया और बुज़दिलाना हरकत दिखाई है। उसका पाकिस्तान की फौज और हमारे सिपा सलार और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सलामती कौंसिल के इजलास में पूरे इख्तियारात फौज को दे दिए और वह मुअस्सर अंदाज में इंशाअल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है और मोदी को इंशाअल्लाह उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। पाकिस्तान का एक एक जो फर्द है, पाकिस्तान का एक एक नौजवान, पाकिस्तानी पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है और ये इनका जोश व खरोश, कौम का जज्बा ये बता रहा है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा तो पाकिस्तानी अफवाज ने, हमारे सिपा सलार ने उनकी आंखें निकाल के रख दी। रैली में शरीक मकामी क़यादत, कारकुनान और शहरियों ने भी भारत के बुज़दिलाना हमलों की मज़ामत की। हम पाकिस्तान के लिए जान भी दे देंगे, अपनी फौज के लिए जान दे देंगे। जब तक हमारी फौज हमारे साथ है, हमारा मोदी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम पुरअमन लोग हैं, हमारा परचम भी अमन का पैगाम देता है। सबसे हलाली परचम हमारा है जो कि अमन का पैगाम देता है। मोदी, अगर तुम अमन से रहोगे तो हम पहले ही पुरअमन में, अगर तुम गुंडागर्दी कर दोगे, दहशतगर्दी करोगे तो हम अपनी फौज के साथ तुम्हारे घरों में आके घुस के मारेंगे। हम अपने फौज के साथ हैं, जहां भी हमारी फौज हमें कहेगी हम इंशाल्लाह अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे। रैली के अख्ताम पर शुरका ने हाथों में हाथ डालकर कौमी यकजहती का भी इजहार किया। रुमेली लियास, सिटी 42। भारतीय बुज़दिलाना अज़ाइम के खिलाफ कौम मुत्तहिद हो गई। बच्चों और ख़वातीन की जानिब से पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। ख़वातीन का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन को हमारे जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। बच्चों का कहना है कि भारत ने कभी अमन की बात नहीं की, अगर जंग करना चाहता है तो जंग सही। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगी आतिया नास्टी। आतिया, बताइएगा। बिल्कुल, भारतीय जारियत के खिलाफ न सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चों के हौसले भी बुलंद हैं। चूँकि 6 और 7 की दरमियानी शब जो है वो भारत की जानिब से इस मुल्क के ऊपर जो हमला किया गया उसके खिलाफ बच्चों और ख़वातीन के हौसले जो है बुलंद दिखाई देते हैं। न सिर्फ हमारे मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन भी इस हवाले से खासी पुरअज़्म दिखाई देती हैं कि जो दुश्मन मुल्क की जानिब से किया गया वो डेफिनेटली काबिल मज़म्मत है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहदा जो थे उनमें ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा थे। चूँकि भारत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो लोग दहशतगर्द थे, तो कौन सी कौम है जिसमें ख़वातीन और बच्चे दहशतगर्द होते हैं? पहले बार बच्चों से बात करते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ कि जिस तरह भारत की जानिब से जो अटैक किए जा रहे हैं वो खासे जो है उनकी मजम्मत भी की जा रही है, आप क्या कहोगे एज अ चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान? एज अ चाइल्ड ऑफ पाकिस्तान मैं ये कहना चाहूँगी कि इंडिया ने बिल्कुल बुज़दिली का दिखाया है, बिल्कुल बुज़दिली किया है। रात के अंधेरे में उसने हमला किया है। पहली बात तो इंडिया को कोई जंग पहल करनी नहीं थी, जंग पहल में नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि नहीं बनता था उसका। और अगर किया भी है ना तो पाकिस्तान का ही बनता है कि यहाँ तो वो एक अच्छा सा मुआहिदा कर ले या वो आगे से जवाबी कार्रवाई करे। अगर वैसा नहीं करा तो अमन या मीन्स पीस कायम रखने की कोशिश करे। बिल्कुल देखिए, छोटे बच्चे इनको पता है कि अमन और पीस क्या होता है, लेकिन दुश्मन को नहीं पता कि पीस किस चिड़िया का नाम है। अच्छा बेटा, आप बताओ, आप क्या कहोगे इस हवाले से? चूँकि आपके दोस्त भी आपके साथ होते हैं तो स्कूल में भी डिस्कशन होती होगी ना कि इंडिया ने क्या किया। हम कहना चाहेंगे कि इंडिया ने बहुत बुज़दिली से हमला किया, उसको नहीं करना चाहिए था। आप जरा आइए, आप क्या कहोगे इस हवाले से? पाक फौज के साथ हैं, अगर पाक फौज कहती है कि छोटे बच्चे हमारे साथ आके लड़ें तो क्या करोगे? फिर लड़ेंगे उनके साथ।
डेफिनेटली लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक एरिया नहीं है, बल्कि बहुत सारी जगहों पे जब भी आप कहीं जाते हैं तो यही देखने को मिलता है कि बच्चों और ख़वातीन के हौसले जो है बुलंद हैं, और यही कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की जानिब से जो घिनौनी हरकत की गई वो काबिल मजम्मत है। इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती की जा रही है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर हमारी अफवाज को ज़रूरत पड़ती है तो न सिर्फ इस मुल्क की बच्चे मर्द हजरात बल्कि ख़वातीन और बच्चे। ठीक है आदिया, आपका बहुत शुक्रिया। आधा क्रीम मार्केट में पाक फौज से इज़हार यकजहती के मौके पर अवाम का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। इस वक्त मैं क्रीम ब्लॉक में जो है वो मौजूद हूँ, जहाँ पर पाक भारत कशीदगी के हवाले से अवाम का रद्द अमल किया है, ये हम जो है वो जानने के लिए आए हैं। अफवाज पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ अवाम खड़ी है बल्कि अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना, जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे कर रही है, वहीं पर अफवाज पाकिस्तान के साथ मुल्क व कौम के साथ, मिल्लत के साथ, भरपूर जज्बे के साथ अवाम का क्या कहना है वो हम अवाम से ही जो है वो जानेंगे कि अवाम जो है वो पाक फौज जो के हर महाज पे दुश्मन के दान खट्टे कर रही है वो कितने उसके साथ जो है वो शाना बशाना खड़े हुए हैं, और मज़ीद जो है वो कितना रिस्पॉन्स जो है वो पाक फौज की जानिब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उस जंग के बारे में उनका क्या कहना है। सर मुझे बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे आप जंग के हवाले से, कितने जो है वो आप इस बारे में समझते हैं कि हमने जो है वो बेहतर जवाब दे दिया है और आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतर जवाब जो है वो हम देंगे? हम यही कहेंगे कि वो हमारे साथ ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गरीब हम सोई होती है और ये हमले करते हैं सोए हुए अवाम को। हम यही कहेंगे हमारी पाक फौज हमारी हिफाजत कर रही है। पाक फौज आपकी हिफाजत कर रही है। आप मुझे बताएं कि जब दुश्मन ने हमला किया तो डरे तो नहीं, सहमे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। हमारे बॉर्डरों पे शेर खड़े हुए हैं, हमने क्यों डरना है। इन्होंने काफिलाना हमला किया, काफरों की तरह किया, सब सोए हुए थे तो इन्होंने हमला किया, लेकिन फिर भी माशाल्लाह पाक फौज ने बेहतरीन जवाब इनको दिया। अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन जवाब दिया। आइंदा आने वाले वक्तों में क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि हमारा जवाब जो है वो क्या समझते हैं, कैसा होगा, और दुश्मन को किस कदर जो है वो हम उसके छक्के छुड़वा देंगे? छक्के छुड़वा देंगे, पूरे छुड़वा देंगे, जैसे उन्होंने किया हम वैसे ही करेंगे। फिर आप बताएंगे उन्होंने क्या? बिल्कुल बेहतरीन उनके साथ करेंगे। उन्होंने तो काफरों की तरह हमला किया ना, हम लोग उनके सामने जाके बिल्कुल हमला करेंगे। हम जो है वो सही अफवाज पाकिस्तान जो है वो मर्दों की तरह, जो कि पहले ही हमारे शेर हैं, पहले ही जो है वो हमारे अफवाज पाकिस्तान हमारे सर का ताज, हमारा फ़ख्र है। हम जो है वो दुश्मन को वो जवाब देंगे कि दुश्मन की आने वाली तमाम नस्लें भी ये याद रखेंगी कि उसने किस कौम को ललकारा है, किस कौम को जो है वो उसने किस पाक फौज को। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। शहर भर में अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां और तकारीब का इनेकाद किया गया। अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ जगहों पर रैलियां और तकारीब। हॉल रोड मार्केट के ताजर भी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने को तैयार हैं। शहर में निजाम जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। भारत के झूठे और मन घड़त दावे मजाक बन गए। भारतीय मीडिया फेक न्यूज प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस पर उसे शर्म आनी चाहिए। ये 25 करोड़ की 25 करोड़ आवाम आपके पीछे खड़ी है। हम आपके लिए जान भी देंगे, माल भी देंगे, जो हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे वो भी पूरी करेंगे। और साथ साथ सबसे अहम बात कि इस वक्त ना पाकिस्तान में कोई फिरका वारियत है, ना कोई तफरीक है सियासी जमातों में, ना दीनी जमातों में। हर शख्स सिर्फ एक ही बात कर रहा है कि मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तू भी पाकिस्तानी है। लाहौर होटल ऑटो मार्केट के ताजों की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की गई। ताज बरादरी का कहना था कि हमारा माल हमारी जान पाक फौज के लिए हाजिर है। सीसा पलाई दीवार बनकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ताजों का कहना था कि भारत को लगता है कि पाकिस्तानी परेशान बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कारोबार भरपूर अंदाज में चल रहा है। टिकट होल्डर PP 162 और रहनुमा पीपल्स पार्टी मलिक मंजर अब्बास खोखर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कारकुनान ने मुजाहरा किया। मुजाहरे में पाक अफवाज की हिमायत की गई। पाकिस्तान में भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत की गई। कारकुनों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए और हर महाज पर डटे रहने का आज़म किया गया। पाक भारत कशीदगी पर लीगी रहनुमाओं का ख्यालात का इज़हार। लीगी रहनुमाओं ने भारत के रात के अंधेरे में हमले को शर्मनाक करार दिया। पाक फौज के जवानों का भरपूर साथ देने का ऐलान भी किया।
भारत ने बड़ी बुज़दिलाना हरकत की है और मैं उनकी हरकत पर जो है वो पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ। जिस तरह उन्होंने छोटे बच्चों को टारगेट किया, जिस तरह उन्होंने औरतों को टारगेट किया, ये बुज़दिलाना हरकत है और ये बुज़दिलाना हरकत जो है ये एक बुज़दिल मुल्क ही कर सकता है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ अपनी पाक फ़ौज के लिए, जिन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ बड़ा दलेराना कदम उठाया और इस मुकाबले को जो है वो बड़ी खूबसूरती से वो जो है पाकिस्तानी फ़ौज को पाकिस्तान की आवाम को सेव करने के लिए कर रहे हैं और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और जब भी हमारी आर्मी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी एज ए गवर्नमेंट, एज ए आम कौम होते हुए हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने फौज के जवानों को सराहा। ये इंडिया मुर्दाबाद, इनकी ये रवायत आज की नहीं है। 1965 में इन्होंने रात के वक्त हमला किया, 1971 में भी रात के वक्त हमला किया और उन्होंने ये तरीक़ दिलाई है कि आज भी रात उन्होंने नहाते शहरियों पे हमला किया। तो हम उसकी पूरी ज़ोर मजम्मत करते हैं और हम पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज ने इतना दीदा दलील के साथ उनका मुकाबला किया और उनको अपनी हदूद में रहते हुए उनके 5 त्यारे मार गिराए जिन पर उनको बहुत नुकसान हुआ है और उनकी छोड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो हम पाक फ़ौज के साथ हैं, पाक फ़ौज के जवानों के साथ हैं, हमारा खून उनके साथ है, हमारी जान उनके साथ है, हमारा माल उनके साथ है। तो हम इंशाल्लाह हमेशा अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर मंसूरा में मुल्की सालमियत और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का एहतमाम किया गया। रैली की क़यादत जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने की, जबकि रैली में कैसर शरीफ, अब्दुल अजीज आबिद, डॉक्टर आसिफ, अजहर इकबाल समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी और कैसर शरीफ का कहना था कि पाक फौज ने जिस तरह भारत को एक मरतबा फिर धूल चटाई है, इससे कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है। उनका कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ है और मिलकर भारत का मुकाबला करने को तैयार है। 25 करोड़ अवाम आपकी पुष्ट पर खड़े हैं, आपका हौसला बुलंद करने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़े, इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि शहादत हमारी आरज़ू है और शहादत की तमन्ना लिए पाक फौज के लोग भी और पाकिस्तानी अवाम भी हरदम तैयार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। प्रोपेगेंडे को पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की है। भारत पूरी तरह बेनकाब हो गया है और बुरी तरह नाकाम हो गया है। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का किला है, पहली डिफेंस लाइन है। 1965 में भी इन्हीं लाहौरियों ने इस इंडिया के दांत तोड़े थे और आज भी पूरा लाहौर जो है वो सड़कों पर है और इस चीज़ का ऐलान कर रहा है कि हम अपनी पाक फौज के साथ हैं और इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। रैली के इख्तिताम पर मुल्की सालमियत, शुहदा और पाक फौज के लिए खसूसी दुआ करवाई गई। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग की जानिब से जैन मंदिर चौक पर पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप कायम कर दिया गया है। मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने कैंप का इफ्तिताह किया। इस हवाले से मजीद जानेंगे रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम स्टूडेंट लीग लाहौर की जानिब से जैन मंदिर चौक पर पाकिस्तान की अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद कैंप लगाया गया है, जिसका इफ्तिताह जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी ने किया है। जबकि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के जो रहनुमा और कारकुनान हैं वो भी इस कैंप में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल हाशमी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कैंप का मकसद क्या है। जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो कैंप लगाया गया है पाकिस्तान जिंदाबाद, इसका मकसद क्या है? हम सब जानते हैं कि दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर रखा है और वो मुसलसल हमारी इंटेग्रिटी पे, हमारी सालमियत पे हमलावर है। तो हर तबका इस वक्त अपने जज्बात का इजहार कर रहा है, मुल्क के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। इसी मोहब्बत के इजहार के लिए आज मुस्लिम स्टूडेंट लीग ने यहाँ जैन मंदिर चौक में इस कैंप को लगाया है ताकि लोगों को अपने मुल्क के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। जो मुल्क की मोहब्बत है उसको लोगों के अंदर और ज़्यादा बढ़ाया जाए। ख़ास तौर पर नौजवानों को वतन के दिफा के लिए तैयार किया जाए और उन्हें अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने के लिए एक पैगाम दिया जाए। जी बिल्कुल, नौजवानों को दफाए वतन के लिए तैयार करने के लिए, उनमें शौर बेदार करने के लिए इस कैंप का जो इनेकाद है वो किया गया है। जी रुमेल इलियास, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।
पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए निकाले जाने वाली रैलियों का अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए खवातीन भी मैदान में आ गईं। पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग PP 168 के जेरे इह्तिमाम व्हाइट पैलेस झंडा चौक मरगजार कॉलोनी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली के दौरान शुरका ने पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए। फौज से इजहार यकजहती के लिए वॉक का इह्तिमाम किया गया। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। निजामाबाद में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली में लीगी वर्कर्स और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। साबिक वाइस चेयरमैन आगा अली रजा का कहना था कि पूरी कौम पाक फौज के साथ कदम ब कदम खड़ी है। पाक फौज को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की बका की बात होगी तो हमारी कौम पूरी शाना बेशाना अपनी पाक फौज के साथ है। कुरान सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के जेरे इह्तिमाम रैली का इनेकाद किया गया। मरकज कुरान सुन्ना लॉरेंस रोड पर नमाज जुमा के बाद बुज़दिलाना भारतीय हमलों में शहीद होने वाले शहरियों की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई, जबकि अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। शुरका का कहना था कि हम आज अपनी फौज के साथ हैं, कोई आंख उठाएगा हम आंख नोच लेंगे। सिंहपुरा में कौमी असम्बली के हल्का NA 119 के मरकजी दफ्तर में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कमल लियाकत की जेरे कयादत पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए। शुरका ने हाथों में कौमी परचम और पाक फौज के हक में बैनर्स उठा रखे थे। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी की यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाक फौज की शाना बशाना खड़े होने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने बहरिया टाउन ग्रैंड मस्जिद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 4 रोज के दौरान पाकिस्तान पर एक जंग की कैफियत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान से हमारी मुसल्लह अफवाज ने बिलखुसूस हमारी बर्री और फ़ज़ाइया ने जिस अंदाज से हिंदुस्तान को जवाब दिया है वो तारीख के औराक में नक्श हो गया है। आज हिंदुस्तान अपनी फ़ज़ाइया की नाकामी की वजह से ड्रोन हमले करने की कोशिश कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नाकाम हो रहे हैं। पाकिस्तान की ये कामयाबी है कि अब तक जितने भी ड्रोन हमले किए गए वो सारे ड्रोन गिराए गए हैं और वो बजाय इससे जो हिंदुस्तान का मकसद था कि वो पाकिस्तानी कौम को खौफजदा करता, आप देखिए कि आज मसाजिद के अंदर जुमातुल मुबारक के इज्तिमाआत लोग पहले से ज्यादा मसाजिद में आ रहे हैं। हमारी सड़कों पे सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की अकबर चौक आमद एहसान ब्रदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, भारत किसी गलत फहमी में मुब्तला है। पाक फौज के साथ पूरी कौम शाना बशाना खड़ी है। पाक फौज जल्द भारत को बड़ा सरप्राइज देगी। उनका कहना था कि पाकिस्तान की अवाम अपना कारोबार और मामलात भरपूर अंदाज में लेकर चल रही है। जंग जैसे माहौल में भी अवाम खुलकर कारोबार कर रही है। एक जो ट्रस्ट है वो अपनी आर्म फोर्सेस पर रखना चाहिए। हमारे सिपाहीसालार जो हैं वो अल्लाह के फजल से बेहतरीन प्रोफेशनल हैं और हम इंडिया की विकेट पर मैच नहीं खेलेंगे, हम अपनी विकेट पर मैच खेलेंगे। कुछ लोग हमारे साथी जो जज्बाती होते हैं वो कहते हैं कि जनाब हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो याद रखें कि हमारा असली दुश्मन हमें ट्रैप करना चाह रहा है और हमने अपनी विकेट पर मैच खेलना है, अपनी शराइत पर खेलना है और खेलना जरूर है। और यकीन रखें कि पाक फौज अब तक इंडिया को दंदान शिकन जवाब दे चुकी है, लेकिन हमारी बारी अभी बाकी है। तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है, ये जितने मर्जी ड्रोन भेज लें, ये जो मर्जी कर लें, इंशाल्लाह ताला हमारा एक ही जवाब होगा और वो ऐसे होगा जैसे 28 मई 1998 को हमने 17 दिन इंतजार किया था, गालबन 14 या 17 दिन, और भारत के 5 ठुस धमाकों के जवाब में नवाज शरीफ साहब ने 6 एटमी धमाके करके जवाब दिया था। इंशाल्लाह खातर जमा रखें, हमारा सिपाहीसालार, हमारी हुकूमत, हमारा प्राइम मिनिस्टर इंडिया को वैसा ही जवाब देगा जैसा 28 मई को। वज़ीर सेहत इमरान नज़ीर की स्टैंडिंग कमेटी सेहत पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत। मौजूदा जंगी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा सेहत की तैयारियों मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। स्टैंडिंग कमेटी बराए सेहत व आबादी के पंजाब असम्बली में इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ने इजलास को मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र महकमे की तैयारी
اور مختلف منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ خواجہ عمران نذیر نے بتایا کہ موجودہ جنگی صورتحال کے پیش نظر محکمہ صحت ہائی الرٹ ہے۔ تمام BHUs، THQs، RHC میں ڈاکٹرز کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پنجاب ہیلتھ ریفارمز ویژن کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ تمام بنیادی اور دیہی مراکز صحت اور تحصیل اسپتالوں کے اپگریڈیشن کا عمل بھی شفافیت سے جاری ہے۔ پاک بھارت کشیدگی صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا کہ بھارتی جنگی جنون کے باعث عام شہری محفوظ ہیں، نہ ہی مساجد اور گردوارے۔ پاک فوج نے بھارتی تکبر کو خاک میں ملایا، آئندہ بھی بھرپور جواب دیں گے۔ میڈیا کو اور مودی سرکار کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو آگ لگا رہے اس آگ کی لپیٹ پہ خود آئے گی۔ دیکھیں جس طرح یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا، میں اپریشیٹ کیا، میں نے پہلے بھی اب بھی کرتا ہوں اپنی وزارت کو، وزارت دفاع کو، اپنی فارن منسٹری کو اور دونوں فیڈرل منسٹر صاحبان کو، نائب وزیر اعظم صاحب کو اور پھر اپنے وزیر اعظم پاکستان کو بڑی میچور اسٹیٹمنٹ کی پاکستان کی طرف سے۔ ہم نے کہا کہ تحقیقات میں ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے آزادانہ تحقیقات کرتے ہیں اور جو بھی اس پہ رسپانسبل اس پہ رسپانسبلٹی فکس کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ بھارت کی تو روش ہے نا کہ وہاں پہ جو بھی ہو اس نے پاکستان کو الزام لگانا ہے۔ پنجاب بالکل تیار ہے جی، اور جس طریقے سے سکھ کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی رہی اور سکھ کمیونٹی نے پاکستان کی اس امن کی آواز کو لبیک کا اور کہا جی کہ ہم پاکستان کی امن کے ساتھ ہیں، پاکستان ایک امن کی دھرتی ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ لائک وائز اگر جنگ ہوتی ہے، اول تو میں دعا کرتا ہوں جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ کیا ہے؟ جنگ ڈسٹرکشن ہے۔ جنگ جب ڈسٹرکشن ہے تو پھر جو سویلین ادھر کیوں، سویلین ادھر کیوں، نقصان سب کا ہے۔ لیکن ہم نے پوری اس کی تیاری ہے۔ چیف منسٹر پنجاب، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمیشہ فرنٹ پہ آ کے لڑائی کر لڑتی ہیں اور انہوں نے پوری ایمرجنسی کی سچویشن ہے، پوری وہ ہر لمحے اپنی پاک فوج کا بھی حوصلہ بلند کری ہے، پاکستان کی عوام کا، پنجاب کی عوام کا، اور ساتھ جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ محکمے ہمارے سارے جو موک ڈرلز ہیں وہ سارے کریں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سندھ پوسٹ۔